Hello and a very good morning to all the students. Today we will do our chapter number 8 and the name of the chapter is The First Empire. In this chapter we will learn about the Mauryans, Buddhism, Ashok and all the other aspects of our country, that how they have gradually developed. Now first of all we will learn about the Mauryan Empire. Have a look at your book, all of you. During the rule of Bimbisara and Ajatasattu, Magdha became a powerful kingdom. It continued to hold on to the position of supremacy under the Nanda dynasty. देखो किसके रूल पे थी ये? बिम्बिसारा और अजातशत्रु के टाइम पे मगध जो है दैट बिकेम अ पावरफुल किंगडम, और ये दैट वाज कंटिन्यूअसली उसका पावर जो है, पावर एंड पोजीशन जो है ग्रोथ हो रहा था अंडर द नंदा डायनेस्टी. Eventually, the ruling Nanda king was overthrown by Chandragupta Maurya. But what happened in the war? Their dynasty has ended and Chandragupta ने क्या किया? Chandragupta Maurya ने he has overthrew him. A Buddhist story says that Chandragupta hailed from a land full of peacocks, so he got the surname Maurya, and the dynasty founded by him is known as Maurya dynasty. He established the first empire of India, the Mauryan Empire, in 321 BCE. देखो फर्स्ट जो बुद्धिस्ट थे, एक बुद्धिस्ट स्टोरी से हमें पता चलती है दैट चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इनका जो मौर्य सरनेम पड़ा जस्ट बिकॉज ही केम फ्रॉम अ लैंड दैट वाज फुल ऑफ पिकॉक्स. वहाँ पे बहुत सारे इंजी जहाँ से आए थे, दैट प्लेस वाज फुल ऑफ पिकॉक्स. वहाँ बहुत सारे पिकॉक्स थे, दैट्स वाई उन्होंने अपना सरनेम क्या रख लिया? मौर्य. और ये डायनेस्टी ग्रेजुअली ही हैज़ इस्टेब्लिश्ड हिज फर्स्ट एम्पायर इन ऑफ इंडिया. और वो फर्स्ट उन्होंने कहाँ पे अटैक किया था? मीन्स ही हैज़ ओवरथ्रोन नंदा डायनेस्टी. द मौर्यन एम्पायर इन 321 BCE. ये इंडिया में इन्होंने फर्स्ट अपना एम्पायर कब इस्टेब्लिश किया? दैट वाज इन 321 BCE. चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य का देखो पीरियड क्या था? 321 BCE टू 297 BCE. Chandragupta Maurya's rise to power shrouded with mystery. North India was in the state of confusion around 300 BCE. अभी तो चंद्रगुप्त मौर्य जब वो राइज करा उनका पावर, देन व्हाट हैपेंड? नॉर्थ इंडिया में क्या हुआ था? देयर वाज अ कन्फ्यूजन. क्या था? 300 BC में. एंड व्हाट वाज दैट कन्फ्यूजन? देयर वाज अ थ्रेड ऑफ ग्रीक इन्वेशंस फ्रॉम द northwest as Alexander the Great has reached the borders of India. क्या हुआ था? 300 BC के वहाँ पे एक लोगों के अंदर देयर वाज अ थ्रेट कि जो ग्रीक इन्वेडर्स हैं दे विल इन्वेड देम. एंड एट द सेम टाइम अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो भी बॉर्डर्स, इंडिया के बॉर्डर्स पे आ गया था. ऑलमोस्ट ही वॉज अबाउट टू एंटर इन द बॉर्डर ऑफ इंडिया ओनली. इट इज़ बिलीव दैट Brahmin named Chanakya, Kautilya or Vishnugupta wanted to unite all Indian kingdoms to resist the Greek attack. और ये माना जाता है that चाणक्य, have you heard about him? इस पे सीरियल्स भी बहुत सारे आते थे चाणक्य द ग्रेट पे. What did he wanted? He wanted कि इंडिया के सारे किंगडम्स जो है आपस में यूनाइट हो जाए, so that ये जो फॉरेन अटैक है ग्रीक्स का that won't be so much powerful. अगर हम लोग आपस में मिलकर रहेंगे then what will happen? कोई बाहर से इन्वेडर्स हमें अटैक नहीं कर सकता था. So he was in the favor of self strength कि हमें अपने आप को strong रखना है. He made the young and courageous Chandragupta his pupil. With Kautilya's aid and advice, Chandragupta was able to overthrow the ruling Nanda dynasty at Magdha. अभी देखो उस चाणक्य ने जो है उसको ट्रेन किया, किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को. और along with the under the advice of कौटिल्य, और with his in मीन्स एक तरह से overwhelming power just because of him उसने क्या किया था? नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रो कर दिया था. he established the Mauryan Empire in, now move to next page. उन्होंने मौर्यन एम्पायर कहाँ पे बनाया था?
321 BCE and Kautilya became his prime minister. अब देखो कौटिल्य को उसने अपना प्राइम मिनिस्टर बना दिया था. चंद्रगुप्ता सेट अप हिज कैपिटल एट पाटलिपुत्र. चंद्रगुप्ता ने अपना कैपिटल कहाँ पे बनाया? दैट वाज इन पाटलिपुत्र. Megasthenes, the Greek envoy at the court of Chandragupta Maurya, refers to Patliputra as Palibothra. It was a large city shaped like a parallelogram, surrounded by a wooden wall. The wall had holes carved out for the discharge of arrows during a battle. A moat ran along the outer border of the wall, providing extra safety. Chandragupta lived in a luxurious palace in the city. अभी देखो वहाँ पे क्या था, ये जो सिटी है जहाँ की बात हो रही है, दैट वाज इन पाटलिपुत्रा एंड इट वाज नोन एज पालीबोत्रा. ये बहुत ही लार्ज सिटी है और वो किससे सराउंडेड था? वुडन वॉल से सराउंडेड था. और इसके व्हाट वाज द स्पेशल फीचर्स कि वहाँ पे जो वॉल्स बने हुए थे ना, दैट वाज मेड ऑफ वुड और उस पर एरोज लगे हुए थे. मतलब बैटल होते समय जो एरोज चलाते हैं वो लोग, तीर, उसके बहुत सारे वो उस पर वुड पे वो जो है दैट वाज एक तरह से इनग्रेव समझ लो. और वहाँ पे ही यूज्ड टू लिव, मीन्स चंद्रगुप्ता यूज्ड टू लिव इन अ luxurious palace. Next part is conquest. Chandragupta conquered the whole northern India up to the river Indus. चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ तक कॉन्कर किया था नॉर्थ इंडिया को? Up to river Indus. He defeated the Greek general Seleucus and gained control over parts of present day Afghanistan. और उन्होंने सोचो अफगानिस्तान तक को अपने अंडर में ले रखा था उस टाइम. एडमिनिस्ट्रेशन, अभी उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था देखो. Megasthenes states that under the reign of Chandragupta Maurya, the kingdom was well administered. और मेगास्थनीज जो है उन्होंने अपने एक बुक में लिखा है कि अंडर मौर्यन एम्पायर वहाँ पे किंगडम कैसा था? दैट वाज वेरी वेल एडमिनिस्ट्रेड, मीन्स सब कुछ प्रॉपरली मेंटेन था. ऑल द पावर्स ऑफ द स्टेट वेयर इन द हैंड्स ऑफ चंद्रगुप्त. सारे पावर किसके हाथ में होते थे? दैट वाज किंग के हाथ में होते थे. दैट वाज चंद्रगुप्त मौर्य. He was the commander-in-chief of the army. The empire was divided into 4 provinces under each prince. और empire कैसे divide था? 4 province में divide था. एक prince को 4 जो है empires दे दिए गए थे. He was to rule. He was a just ruler and held open courts to hear the grievances of the people. और वो ये एक ऐसे रूलर थे कि वो लोगों की फरियाद सुनने के लिए ही यूज्ड टू, एक असेंबली का वो होता था एंड ही वाज ऑलवेज रेडी टू हियर द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल. उज्जैन, तक्षशिला एंड कौसम्बी वेर द अदर इम्पॉर्टेंट सिटीज ऑफ द एम्पायर. दे वर इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ ट्रेड एज वेल. अभी देखो कौन कौन से उस टाइम पे ट्रेड सेंटर्स थे, दैट कौन से प्लेसेस थे? उज्जैन, तक्षशिला एंड कौसम्बी. नेक्स्ट इज बिंदुसारा. बिंदुसारा आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य. बिंदुसारा जो है ही केम टू रेन और उसका उनके रेन पीरियड क्या था? दैट वाज फ्रॉम 297 BCE टू 273 BCE. आफ्टर अ लॉन्ग रेन of 24 years, Chandragupta Maurya embraced Jainism and perhaps ended his life by observing the Jaina ritual of the self-mortification by fasting. अब देखो इन्होंने कौन से धर्म को अपना लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने ही रेन फॉर अबाउट 24 years और इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था बिंदुसारा ने. और इन्होंने अपनी लाइफ को कैसे एंड किया था? इट इज़ बिलीव्ड दैट इन्होंने जैन धर्म के अकॉर्डिंग फास्टिंग रिचुअल्स करके अपने आप को खुद ही जो सेक्रीफाइस कर देते हैं, उस तरह से उन्होंने खुद की लाइफ को एंड कर दिया था. ही वॉज सक्सीडेड बाई ही सन बिंदुसारा. ही वॉज ऑल्सो नोन एज अमित्राग्रह घाट एंड मेहार सेना. और उनको किसने ओवरकम किया था? बिंदुसारा ने. और ही इज़ ऑल्सो नोन एज, उनको और किस नाम से जाता था? अमित्रघात और महासेना के नाम से. बिंदुसारा
extended the rule of the Mauryan Empire towards Central and Southern Asia. Means after the reign of Chandragupta Maurya, his son became the ruler बिंदुसारा, और उन्होंने अपने जो एम्पायर को था वो और ज़्यादा एक्सटेंड किया था इन सेंट्रल एंड साउदर्न इंडिया. पहले हमने पढ़ा था ना कि अप टू अफगानिस्तान एंड इंदस वैली, इंदस रिवर ही हैज़ एक्सटेंडेड हिज पावर. कौन? उसके फादर ने, दैट इज़ चंद्रगुप्त मौर्य ने. और देन आफ्टर दैट बिंदुसारा ने, उन्होंने भी ही हैज़ मतलब ऑलमोस्ट इन्होंने कौन सा रीजन कवर किया? अराउंड सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया. नेक्स्ट इज अशोका रेंड. अब इनका टाइम पीरियड का क्या था? 273 BCE to 232 BCE. Bindusara was succeeded by his son Ashoka. He is considered to be one of the greatest rulers in Indian history. Or Ashok the Great, we all of us know about him. He was the son of Bindusara. As a young prince, Ashoka was a brilliant, ambitious and ruthless commander. He ruled from his capital at पाटलिपुत्र. और वो कहाँ से? बचपन से ही वॉज वेरी एम्बिशियस, और वो अपने किंग रूल को कहाँ से चलाते थे? अपने कैपिटल पे रहते थे, दैट वाज इन पाटलिपुत्र. फ्रॉम देयर ही यूज्ड टू एडमिनिस्टर ऑल द थिंग्स. ही क्रश्ड रिवोल्ट्स इन उज्जैन एंड तक्षशिला. इन्होंने उज्जैन और तक्षशिला के अगेंस्ट रिवोल्ट्स किए थे. हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा प्रूव्ड टू बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ. आई थिंक कलिंगा वॉर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा. इट प्रूव्ड टू बी अ टर्निंग पॉइंट. इन्होंने इस बैटल के बाद हाउ ही हैज़, किस तरह से उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, दैट वी विल लर्न इन द नेक्स्ट पार्ट. बैटल ऑफ कलिंगा 261 BCE. When Ashoka came to the throne, Kalinga, Odisha was the only major kingdom which was unconquered. Means जब ये अशोका जो है रूल करने आए थे तो कौन सा पार्ट उनके उसमें नहीं था? दैट वाज उड़ीसा. उस टाइम उसको कहा जाता था कलिंगा. इट वॉज स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड एज द रूट ऑफ साउथ इंडिया एंड सदर्न एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, बोथ by land and sea passed through it. The conquest of Kalinga would have added to the prosperity of the Mauryan Empire. अब देखो अशोका जब बने, he has realized कि अगर हम उड़ीसा को कॉन्क्वर कर लेंगे then what will happen? वहाँ सी रूट के थ्रू we can move to some other parts of Asia also for trade and commerce and for every means. एक तरह से उनकी prosperity और ज़्यादा बढ़ जाएगी. In 261 BCE, Ashoka attacked Kalinga and conquered it after a fierce battle. 261 BCE में क्या हुआ? अशोक ने he has attacked कलिंगा, और आफ्टर अ फियर्स बैटल, बहुत ज़्यादा ही बुरी जिसको कहते हैं युद्ध हुई थी. एंड इट इज़ बिलीव्ड कि वहाँ से जो रिवर निकलता था दैट वाज आल्सो मीन्स उसमें ब्लड ऐसे मिक्स होता था दैट इट सीम्स कि ब्लड की ही उस तरह से बह रहा है वो नदी में. द वॉर कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन. अबाउट 1 lakh सोल्जर्स एंड सिविलियंस वर किल्ड. और कितने लोग मारे गए थे? इट इज़ बिलीव्ड कि उस टाइम पे अराउंड 1 lakh सोल्जर्स और सिविलियंस मारे गए थे, इंक्लूडिंग ओवर 10,000 ऑफ अशोकाज ओन मैन. और ये माना जाता है कि अशोका के खुद के जो लोग थे उसमें, बिकॉज बैटल हो रही तो दैट वाज फ्रॉम 2 साइड्स, और अशोका के खुद के लोग भी अराउंड 10,000 दे वर किल्ड. The death, destruction and suffering that he saw as a result of the war filled him with remorse. He realized the futility of war. It is believed that after the Kalinga war, Ashoka changed from being a conqueror to a spiritual leader. और ये माना जाता है कि जो डेथ और डिस्ट्रक्शन इन्होंने इस वॉर के टाइम पे देखा था, उस कहते हैं ना किसी चीज़ को जब हम देखते हैं तो हमारा हार्ट बिल्कुल मेल्ट हो जाता है. इन द सेम वे इन्होंने इतना डिस्ट्रक्शन और इतना डेथ देख लिया कि इन्होंने बिल्कुल कॉन्क्वरर का एज ए कॉन्क्वरर उन्होंने रियलाइज़ किया कि इट्स नॉट अ गुड थिंग. सो ही हैज़ चेंज हिज पाथ, और वो एक स्पिरिचुअल लीडर बन गए. ही एम्ब्रेस्ड द टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्धा एंड रिनाउंस्ड वायलेंस. और उन्होंने गौतम बुद्धा के टीचिंग्स के हिसाब से वायलेंस को छोड़ दिया. ही अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा बाय बैनिंग हंटिंग एंड वायलेंट स्पोर्ट्स. और उन्होंने अहिंसा को अपना लिया. किस चीज़ों को बैन कर दिया? हंटिंग को और वायलेंस को. ही एंडेड forced labor as thousands of people in war ravaged Kalinga were forced into
servitude. Ashoka expanded, now move to next page, expanded friendly relation with states across Asia and Europe by sponsoring Buddhist मिशंस टू दीज स्टेट्स. अभी देखो व्हाट हैपेंड, उन्होंने जब देखा इतने सारे लोग मारे गए एंड व्हाट हैपेंड, बिल्कुल इतना डिस्ट्रक्शन देख के उन्होंने क्या किया, अपने फ्रेंडली रिलेशनशिप्स को अक्रॉस एशिया और यूरोप में बढ़ाने लग गए बाय स्प्रेडिंग द हीज रिलीजन दैट ही हैज़ अडॉप्टेड, दैट इज़ बुद्धिज्म. ही अंडरस्टूड massive public works and campaigns across the country. He maintained a large and powerful army to keep peace. उन्होंने क्या किया, एक although he used to being a powerful kingdom, उनको उसको तो मेंटेन करना था, but he has kept all this for peace. Ashoka brought about 40 years of peace, harmony and prosperity. और उन्होंने around 40 years तक बिल्कुल पीस और हारमोनी का एटमोसफेयर क्रिएट करके रखा था, विच मेड हिम वन ऑफ द मोस्ट फेमस मोनार्क्स इन इंडियन हिस्ट्री. ही वॉज ऑल्सो नोन एज पियदाशी, मीनिंग वन हु लुक्स विथ काइंडनेस अपॉन एवरीथिंग. एंड उनको पियदाशी का उपाधि दी गई थी बिकॉज ही यूज्ड टू लुक आफ्टर एवरीवन विद अ काइंड हार्ट. प्रिंसिपल्स ऑफ धम्मा. अभी देखो प्रिंसिपल्स ऑफ धम्मा होता क्या है in Buddhism. Ashoka's Dhamma was deeply inspired by Buddhism. It did not involve the worship of God or the performance of any sacrifice. Through this philosophy, Ashoka tried to promote good values in people. Some of the principles put forth in Dhamma for the state were. अभी को कौन कौन से principles थे, इनमें क्या होता था, they don't believe in rituals and वर्शिप ऑफ गॉड, ऑल्दो दे ये यहाँ पे अलग अलग सेक्रीफाइसेस में बिलीव नहीं करते, मीन्स पूजा पाठ में नहीं, बट दे यूज टू बिलीव इन मेडिटेशन. अब देखो इनके धम्मा में क्या था, टू प्रमोट पीस एंड हारमोनी इन द स्टेट, टू इंश्योर फास्ट एंड इफेक्टिव जस्टिस टू पीपल. मीन्स प्रमोट किस चीज़ को करते थे, पीस और हारमोनी को, और फास्ट और इफेक्टिव जस्टिस सिस्टम को बनाए, मीन्स किसी के प्रति अन्याय नहीं करना, वो वाला एटीट्यूड. To build roads, rest houses and wells for travelers. अलग अलग रोड्स बनाते थे वो, और रेस्ट हाउसेस, कुएँ, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें ट्रैवलर्स के लिए हेल्पफुल हो, इस टाइप की चीज़ें दे यूज टू बिल्ड. टू सेट अप नर्सरीज फॉर ग्रोइंग मेडिसिन्स, हर्ब्स एंड यूज ऑफ फॉर द यूज़ ऑफ कॉमन मैन. बहुत सारे नर्सरीज उन्होंने बनाए फॉर द ग्रोथ ऑफ क्या, मेडिसिनल हर्ब्स वहाँ पे ग्रो करते थे, सो दैट कॉमन पीपल कैन यूज़ दैट. टू एस्टैब्लिश वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. उन्होंने बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी बनाए ताकि एनिमल्स और प्लांट्स उसमें ईजिली ग्रो कर सकें. टू प्रोमोट एजुकेशन अमंग द पॉपुलेशन, और लोगों को एजुकेट भी करना उन्होंने, दैट वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर रिलीजन. Some of the principles advocated in Dhamma for individuals were. अभी देखो अलग अलग जो principles जो वो लोग मानते थे, what were they? To live together, एक साथ रहना in peace and harmony. To speak the truth means कभी भी झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना. To respect all religions, ये नहीं कि हम बुद्धिस्ट हैं तो then we are going to respect Buddhism only. सारे religions को respect करना. To follow the path of अहिंसा और non-violence. किस पाथ को फॉलो करना, अहिंसा और नॉन वायलेंस को. टुवर्ड्स ह्यूमन्स एंड एनिमल्स मीन्स किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना. टू बी काइंड टू द पुअर इंक्लूडिंग सर्वेंट्स एंड स्लेव्स मीन्स हमें सबसे अच्छे से बिहेव करना है. इट मे बी ये नहीं कि कोई पुअर है या कोई हमारा स्लेव या सर्वेंट है देन वी आर अलाउड टू मिसबिहेव विद दैट पर्सन. टू रेस्पेक्ट एंड ओबे एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए और उनके ऑर्डर्स को ओबे करना चाहिए. In order to spread Dhamma, Ashoka appointed special officials called Dharma Mahatmas. उन्होंने अलग अलग ऑफिशियल्स अपॉइंट किए थे फॉर स्प्रेडिंग हिज धर्मा, और उनको क्या कहा जाता था, धर्मा महामत्रास. Ashoka's edicts. In 1837, a British scholar, James Prinsep, deciphered the Brahmi script, in which most of the Ashokan inscriptions were written. अशोक की जो एडिक्ट्स थे ना,
जो वो कहाँ पे मेनली हमें इन 1837 जो ब्रिटिश स्कॉलर आए थे जेम्स प्रिंस, उन्होंने अपने ब्राह्मी स्क्रिप्ट में डेसिफर किया गया, उसमें लिखा है कि इन विच मोस्ट द अशोकन इंस्क्रिप्शंस वर रिटन, उसमें मेनली अशोक के स्क्रिप्ट्स लिखे हुए हैं. Ashoka explained his ideas to the common people through the numerous edicts he issued, which were placed all over India and certain parts of Nepal, Pakistan and Afghanistan. उन्होंने अपने रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए देखो उन्होंने बहुत सारे एडिक्ट्स बनाए थे, और वहाँ पे उनके जो है अलग अलग एडिक्ट्स क्या होते हैं, फॉर्मल अनाउंसमेंट ऑफ सम रॉयल डिजर्ट और लॉ. तो इसमें क्या होता है, वो एडिक्ट्स जो है खुदे हुए होते हैं, जो दे यूज टू फॉलो दोज रूल्स. द एडिक्ट्स वर रिटन ऑन रॉक्स एंड स्टोन पिलर्स. कहाँ पे लिखे हुए होते हैं ये सारे, रॉक्स या पिलर्स पे. इन प्राकृत, और लैंग्वेज क्या होती है, प्राकृत, द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन. द एडिक्ट्स ऑफ अशोका गिव अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट हिज थॉट्स. और इन एडिक्ट्स से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि क्या था, उनकी थिंकिंग क्या थी उस टाइम पे. They tell us about Ashoka's efforts to maintain peace and promote the idea of Buddhism far and wide. और ये हमें इंफॉर्मेशन देती है कि किस तरह से उन्होंने पीस और हारमोनी को मेंटेन किया था थ्रू हिज रिलीजन बुद्धिज़्म. The only bilingual edicts written in Aramaic and Greek has been found in Afghanistan. मीन्स बाइलिंगुअल मीन्स क्या हुआ, दो लैंग्वेजेस जो होते हैं, तो वो कहाँ पे पाया जाता है, दैट इज़ इन अफगानिस्तान. द एडिक्ट्स हैव 2 स्क्रिप्ट्स, उसमें 2 स्क्रिप्ट्स हैं. सम आर इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट वाइल दोज इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन आर इन द खराशोस्ती स्क्रिप्ट. मीन्स ये जो दोनों स्क्रिप्ट्स हैं ये नाम है. अशोका's मैसेंजर्स ट्रैवल्ड. अशोका's के जो मैसेंजर्स होते थे, मैसेंजर्स मीन्स वो जो लोगों को भेजते थे अपने रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए, एज फार एज सीरिया, इजिप्ट एंड ग्रीस. और उन्होंने कहाँ तक भेजा था अपने मैसेंजर्स को, सीरिया, इजिप्ट और ग्रीस में. ही ऑल्सो सेंट हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा टू स्प्रेड हिज धम्मा टू श्रीलंका. इन्होंने अपनी सन महेंद्र को और डॉटर इनकी बेटी थी दैट वाज संघमित्रा, उनको भी भेजा था टू स्प्रेड हिज रिलीजन इन श्रीलंका. मौर्यन आर्ट. अभी देखो इनका आर्ट एंड कल्चर कैसा था. देयर वाज रिमार्केबल आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स इन द मौर्यन पीरियड. द मोनोलिथिक पिलर्स ऑफ अशोका ऑन विच हिज फेमस एडिक्ट्स वर इंस्क्राइब्ड आर ग्रेट मॉन्यूमेंट्स ऑफ द मौर्यन पीरियड. Some historians feel that these pillars have a Persian influence. इनके जो रिमार्केबल आर्टिस्ट जो उस टाइम के थे, they used to build pillars. और वो पिलर्स पे जो है उनके एडिक्ट्स गुदे हुए होते थे, लिखे हुए होते थे. मीन्स लिखे क्या, उस टाइम तो स्क्रिप्ट्स उस तरह से लिखे नहीं जाते थे, तो जो गुदे हुए होते ना, जो स्टोन्स पे जैसे वो चीनी हथौड़ी से बनाते हैं उसी तरह से. और कुछ हिस्टोरियंस को ये भी फील होता है कि दैट दीज पिलर्स हैव अ पर्शियन इन्फ्लुएंस. पर्शियन कल्चर को फॉलो किया गया था. मीन्स उस टाइम की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस तो थी नहीं. द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दीज पिलर्स इज फाइनली कार्व्ड कैपिटल, द टॉप पार्ट ऑफ द पिलर विद ग्रेट एनिमल फिगर्स. और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका फीचर क्या होता था, जो पिलर होता था उसके ऊपर जो है एक एनिमल का फिगर होता था. देखो नेक्स्ट पेज पे आपके दिया हुआ है दैट देयर इज़ अ लायन, और वो किस तरह से पिलर के ऊपर वो उसको मतलब खोद के बनाते थे. वो देखो कितना टफ जॉब होता था. द टॉप पार्ट ऑफ अ पिलर विद अ ग्रेट एनिमल फिगर. द मोस्ट फेमस पिलर इज एट सारनाथ. सबसे फेमस ये पिलर कहाँ पे, सारनाथ वाराणसी में. 4 lions सिटिंग back to back and facing the 4 directions are carved on the top of this pillar. और इस पिलर में हमें देखेंगे दैट 4 lions are sitting और वह एक दूसरे के बैक में है. बिलो ईच लायन इज अ व्हील और चक्र, और इनके नीचे में क्या है, एक व्हील या चक्र है. द लायन कैपिटल इज नाउ द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया. और ये जो है अब हमारा एक नेशनल एम्ब्लेम भी है. एंड अनदर आर्टिस्टिक अचीवमेंट ऑफ दिस पीरियड आर द स्तूपास. और उसके अलावा स्तूपास जो है, स्तूपास मीन्स डोम शेप्ड जो स्ट्रक्चर, जो जैसे इनके जो वो बने हुए होते हैं रिलीजियस प्लेसेस, उस पर उसका शेप कैसा होता है, ऊपर का डोम शेप्ड का होता है.
which held relics of the Buddha and Buddhist monks and viharas, monasteries. उनके अलग अलग viharas जो monasteries बने हुए होते हैं. These are further proofs of Mauryan mastery over stone carving and architectural skills. और ये सारे जो वो बनाते थे जिस टेक्नोलॉजी से, वो प्रूफ करता है कि that they were very much good in art and architectural skills. The surface of the stupa was generally built of bricks with a thick layer of plaster. और इसका जो surface होता था स्तूपा का, वो किससे बना होता था? That was built of bricks. Bricks means वो जो ईंटें होती हैं उससे, with a thick layer of plaster. उसके ऊपर क्या होता था? एक thick layer किसकी बनाई जाती थी? प्लास्टर की. It was crowned with an umbrella of stones. The stone railings and गेटवेज वेयर एडेड लेटर. और बाद में क्या होता था? उसके रेलिंग्स और गेटवेज वगैरह ऐड किए जाते थे उसमें. नेक्स्ट इज मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन. देखो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था वहाँ पे. मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन. द मौर्यन एम्पायर हैड एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. इट फंक्शंस एट 4 लेवल. फर्स्ट लेवल वॉज सेंट्रल लेवल, मीन्स सेंट्रल जो है सबको देखता है. उसके बाद नेक्स्ट वॉज डिस्ट्रिक्ट लेवल, देन provincial level and then village level. Central administration. The king was the supreme authority, means king जो है उसके पास सारी authority होती है, सारे rights होते थे. He took all the important decisions. सारे important decisions कौन लेता था? king लेते थे. He was assisted by a council of ministers, that is मंत्री परिषद. और वो उनके अलग अलग मंत्रीज होते थे. They used to advise him on various issues. The various branches of administration such as revenue, military, etc. were under officers called amatyas. और ये जो है अलग अलग ब्रांचेस के एडमिनिस्ट्रेटिव्स होते थे. जैसे रेवेन्यू के अलग हैं, मिलिट्री के अलग हैं. प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. फ्रॉम अशोकन एडिक्ट्स वी नो द नेम ऑफ द 4 प्रोविंशियल कैपिटल्स. दैट इज कौन सी कैपिटल्स थे? देखो उस टाइम प्रोविंशियल. तोसाली इन ईस्ट में तोसाली. उज्जैन कहाँ पे था? दैट वाज इन वेस्ट. सर्वनागिरी इन साउथ एंड तक्षशिला इन द नॉर्थ. मीन्स ये अलग अलग डायरेक्शन में उनके 4 कैपिटल्स थे. 4 हेड एक तरह से. द हेड ऑफ द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द कुमारा. और इसका हेड कौन होता था? कुमारा, द रॉयल प्रिंस, मीन्स राजा का बेटा. हु गवर्न द प्रोविंसेस एज किंग्स रिप्रेजेंटेटिव. और वो किसका रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था? किंग का. द कुमारा वॉज असिस्टेड बाय महात्मास एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. और कुमारा जो है ही वॉज असिस्टेड बाय मिनिस्टर्स. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. ईच प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इंटू मैनी डिस्ट्रिक्ट्स. मतलब हर एक प्रोविंस किस में डिवाइडेड था? इनटू डिस्ट्रिक्ट्स. द प्रदेशथा was the head of each district and was assisted by junior officials such as yaktas and राजूकाज. अभी देखो जो प्रशिस्ताज और हेड जो ईच डिस्ट्रिक्ट का होते थे, ही वॉज असिस्टेड बाय जूनियर ऑफिसर्स. उनके नीचे जो ऑफिसर्स होते थे वो एडवाइस करते थे. और उनको क्या कहा जाता था? सच एज, वो जो पोस्ट होती थी दैट वाज नोन एज यक्ताज एंड राजूकाज. सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट level was survey and assessment of land, collection of revenue and maintenance of law and order. सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस उसमें क्या होते थे? मीन्स सर्वे करना कि कितना लैंड अवेलेबल है, और कलेक्शन ऑफ टैक्स एंड रेवेन्यू, एंड अलॉन्ग विद दैट मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. विलेज एडमिनिस्ट्रेशन. ईच विलेज हैड अ हेडमैन. हर एक विलेज में एक हेडमैन होता था, एक तरह से सरपंच टाइप, who was assisted by a council. Their function included assigning government officials in marking the boundaries of the village, maintaining land records and collecting tax. और इसका काम क्या होता था सरपंच का, ये हेडमैन का? he used to make boundaries, अलग अलग जो villages के बीच में boundaries होती थी वो maintain करना, और along with that tax के collection का record रखना.
Welfare measures. Chandragupta undertook many welfare projects such as construction of roads and plantation of trees. चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने टाइम पे बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे, जैसे कि रोड बिल्ड करना और रोड्स के किनारे किनारे प्लांट्स को ग्रो करना. Ashoka was very concerned about his subject and made a lot of efforts to ensure their comfort and convenience. And even just like his father, Ashoka was also, means just like his ancestor एक तरह से, he was also very much concerned about his subject. Subject means अपनी प्रजा के प्रति. He was also very dedicated और वो उनको बहुत ही comfort और convenient zone में रखना चाहते थे. And now what he did for that देखो. Under his rule, the state built good roads and travelers and planted fruit trees along the roads to provide the travelers with shade and food. और उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे roads बनाए थे और वहाँ पे जो प्लांट्स ग्रो किए थे ना, दैट वाज फ्रूट के प्लांट्स वहाँ पे ग्रो करे थे, ताकि जो विलेजर्स जो वहाँ से क्रॉस करें उन्हें खाने की कमी ना हो. दे कैन ईजिली गेट द फ्रूट्स ऑफ फ्रॉम द ट्री एंड अलॉन्ग विद दैट उनको उसकी शेड भी मिले. He also made sure that wells were dug at regular intervals to provide water. और बहुत सारे कुएं भी खुदवा रखे थे उन्होंने, so that क्योंकि उस टाइम इतना ज़्यादा डेवलप तो थे नहीं लोग, तो they used to get water from that wells. Rest houses were built at regular intervals for the travelers. और बहुत सारे रेस्ट हाउसेस भी उन्होंने बनाए थे, आराम घर जिसको कहते हैं. Ashoka set up nurseries for the cultivation of medicinal herbs to treat both men and animals. उन्होंने बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स भी ग्रो किए थे ताकि उससे उनकी ट्रीटमेंट की जाए, किनकी, लोगों की और एनिमल्स की. नेक्स्ट वाज आर्मी. The Mauryas had a large army which included infantry, cavalry, elephants and chariots. इन्होंने बहुत सारे आर्मीज़ बना रखी थी और अलग अलग इनके चैरियट्स, एलिफेंट्स और बहुत सारे इन्फेंट्रीज इन्होंने बना रखी थी. दे ऑल्सो हैड अ नेवी. उनकी अपनी नेवी पे भी चलती थी, मतलब नेवी जो नौसेना जिसको कहते हैं, नौसेना, थल सेना, मतलब जो वाटरवे में होती है. द सेनापति वॉज द हेड ऑफ द आर्मी. हेड कौन होता था? सेनापति होता था उसका. दो द किंग लेड द आर्मी ड्यूरिंग वॉर्स. और वॉर के टाइम पे ही ओनली किंग जो है हेड माना जाता था, उसके अदरवाइज सेनापति वॉज द हेड ऑफ द मिलिट्री सिस्टम. द इन्फेंट्री वॉज इक्विप्ड विथ बोज, एरोज, स्वॉर्ड्स, आर्मर एंड शील्ड्स. और इन्फेंट्री जो है, इनकी जो सेना होती थी वो बहुत अच्छे से इक्विप्ड होती थी. उनके पास बहुत सारे हथियार होते थे, जैसे कि बोज, एरोज, तीर, धनुष, तलवारें और आर्मर्स और शील्ड्स होते थे, जो शील्ड जिससे वो खुद के बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. ऑल द इक्विपमेंट्स वॉज लुक्ड आफ्टर बाई सेपरेट डिपार्टमेंट्स. और ये सारे इनकी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होती थी. अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज, द एम्पायर wielded a military of 6 लाख इन्फेंट्री. और मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग जो उन्होंने मेंशन किया है कि इनकी मिलिट्री में क्या था, 6 लाख इन्फेंट्रीज थे, 30,000 कैवलरी थी और 9,000 वॉर एलिफेंट्स थे एंड 800 चैरियट्स भी थे. द आर्मी वॉज वेल ट्रेंड एंड रेगुलरली पेड. और जो इनकी आर्मी होती थी वो बहुत अच्छे से ट्रेंड होती थी और उन्हें रेगुलर पे किया जाता था. मीन्स सैलरी सिस्टम वॉज गुड. द स्पाई सिस्टम. स्पाई क्या होता है? मीन्स जासूस. The Mauryans had a very efficient spy system. Many spies were women and posted in different parts of the kingdom. And even उस time women भी थे ना, they were also very जासूस kind of person. The king was thus kept well informed of developments within and outside the kingdom. और इस तरह से king को सारे regular information मिलता रहता था कि what is going on in his kingdom and along with that out of his kingdom also. This system also kept him well informed of public opinions on important issues. और इसके थ्रू उन्हें लोगों की व्यूज़ भी मिलते थे कि what people used to think about particular things. जैसे कुछ उन्होंने लॉ बनाया तो लोगों को वो चीज़ उसको कैसे ले रहे हैं वो. नेक्स्ट इज रेवेन्यू. The main tax was the tax on land. सबसे मेन टैक्स क्या था? ज़मीन का टैक्स जो होता था उस टाइम, which was fixed between 1/4 and 1/6 of the produce.
डिपेंडिंग ऑन द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। और वो क्या था, दैट वाज 1/4 होता था या 1/6 होता था रेशियो अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चर, मीन्स कैसा हुआ है प्रोडक्शन, उस पर डिपेंड करता था कि 1/6 होगा या 1/4 होगा। द अर्थशास्त्र ऑल्सो मैंशंस अ वाटर टैक्स एंड द रोड टैक्स। कुछ अर्थशास्त्र जो है उनके उसमें मेंशन है कि वो लोग वाटर टैक्स और रोड टैक्स भी लेते थे। इन एडिशन टू टैक्सेस अदर सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द स्टेट इंक्लूडेड। और कौन कौन से सोर्सेज थे उनके इनकम के? फॉरेस्ट, माइंस, ट्रेड, क्राफ्ट्स एंड कस्टम्स ड्यूटीज़ ऑन इम्पोर्ट्स। जो लोग इम्पोर्ट्स करते थे उनके किंगडम्स में, तो उनसे जो वो कस्टम ड्यूटीज़ लेते थे। द किंग ऑल्सो रिसीव tributes in kind from different parts of the empire. The money collected was used to maintain the army, pay salaries, support various buildings, works, and other public utilities, services such as roads and hospitals. और ये money कहाँ पे spend होता था? For paying the सोल्जर्स, नॉट ओनली सोल्जर्स, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जो भी होते थे उनकी सैलरीज पे करना, रोड्स बिल्ड करना, पब्लिक का वेलफेयर करना, एंड फॉर कंस्ट्रक्टिंग वेरियस हॉस्पिटल्स, इन सब चीज़ों में वो दे यूज टू स्पेंड दीज टैक्सेस। ऑक्यूपेशंस अंडर द मौर्यस मोस्ट पीपल वर फार्मर्स। मौर्यस के अंडर में ज़्यादातर लोग क्या थे? दे वर फार्मर्स। अदर ऑक्यूपेशंस इंक्लूडेड आर्टिजन्स, हेड्समैन, ट्रेडर्स एंड कारपेंटर्स। और अलग अलग जो उस टाइम प्रोफेशंस थे कौन कौन से थे? आर्टिजन्स थे, हेड्समैन थे, ट्रेडर्स और कारपेंटर्स थे। सम पीपल वर्कड एज गवर्नमेंट ऑफिसर्स वाइल मैनी पीपल वर एम्प्लॉयड इन द आर्मी। कुछ लोग जो है गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, अलग अलग पोस्ट रैंक होल्ड करते थे, और कुछ जो है दे यूज टू वर्क एज एन आर्मी, मीन्स आर्मी में एम्प्लॉयड थे वो लोग। Next topic is sources. There are many literary and archaeological sources for studying Mauryan history. हमें Mauryan history के बारे में कहाँ से पता चलती है? That is from archaeological and literary sources. Alexander's general Seleucus sent an ambassador Megasthenes. देखो अलेक्जेंडर का जो अलेक्जेंडर जनरल था उसने अपने एक जनरल को, अलेक्जेंडर ने अपने जनरल सेल्यूकस को सेंड किया था एज एन एम्बेसडर। कहाँ? किसको? मेगास्थनीस, टू लिव इन पाटलिपुत्र एट द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता। और कहाँ पे सेंड किया था? चंद्रगुप्ता के पास। मेगास्थनीस अकाउंट इंडिका, मीन्स ये किसने लिखा है? ये सेम उसके जो एम्बेसडर था अलेक्जेंडर का, मेगास्थनीस, उसने एक बुक लिखी थी इंडिका, जिससे हमें पता चलती है अबाउट द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट टाइम। उस टाइम पे कैसी थी कंडीशन, उससे हमें पता चलती है। कौटिल्य चंद्रगुप्ता मौर्यस प्राइम मिनिस्टर रोट अ पॉलिटिकल ट्रीटीज अर्थशास्त्र। कौटिल्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्राइम मिनिस्टर था, उसने एक पॉलिटिकल ट्रीटीज लिखी थी। What was the name? अर्थशास्त्र. It is a book on politics and the art of governance. और ये किस पे है ये बुक? That is on the political system. Another literary sources is the drama Mudra Rakshasa, written by Vishakha Datta. It describes how Chandragupta came to power. और अलग और कौन सा लिटरेरी सोर्स है? एक ड्रामा है, दैट वाज रिटन बाय विशाखा दत्ता। वो डिस्क्राइब करता है कि चंद्रगुप्ता किस तरह से, हाउ पावरफुल, मीन्स हाउ ही केम टू पावर। बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट, particularly the Sinhalese Chronicles, Deepavamsa and Mahavamsa give an account of Mauryan history. और इन बुक्स के थ्रू, बुद्धिस्ट बुक्स के थ्रू भी हमें उसके बारे में पता चलती है अबाउट द मौर्यन हिस्ट्री। अशोका's rocks and pillar edicts and Mauryans कॉइन्स आर इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। और वो जो अलग अलग रॉक्स पे हमने पढ़ा था ना, पिलर्स पे वो जो एडिक्ट्स बनाते थे और उनके जो कॉइन्स थे, दैट ऑल्सो प्रूव्स की व्हाट वाज द सिस्टम एट दैट टाइम। द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यस। अभी देखो मौर्यस का डिक्लाइन कैसे हुआ था। आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका इन 232 BCE द मौर्यन एम्पायर बिगैन टू
disintegrate. There were several reasons for this. और इसके पीछे reasons क्या क्या थे? Ashoka was succeeded by a series of weak rulers who were not able to control the empire. अशोका के बाद जितने भी king बने ना, they were very weak, so they were unable to control the foreign attacks. बाहर के जो outer attacks होते थे वो उस पर control नहीं रहा उनका. The governors of the district provinces took advantage of this situation and declared independent. और जो governors थे ना अलग अलग provinces के, उन्होंने देखा कि अगर इतना strong नहीं है ruler, so they have declared themselves as king. Now move to next page. The administration deteriorated and roads were neglected. जो administration था that was neglected and roads भी उस तरह से फिर after that वो destroy ही होते गए. This affected trade and commerce, communication between different regions. और just because of the trade and communication जो है जो बहुत ज़्यादा grow कर रहा था during अशोका, वो जो है downfall होने लग गया. Loss in revenue made it difficult to maintain a large army. जब revenue ही नहीं होगा, provinces ने खुद को अपने आप को individual declare कर दिया, तो क्या हुआ, रेवेन्यू कलेक्शन भी स्टॉप हो गया. उस तरह से उतना लार्ज, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लार्ज आर्मी मेंटेन करना भी मुश्किल हो गया. द ऑफिसर्स बिकम करप्ट विच अफेक्टेड द एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. ऑफिशियल्स जो है वो दे ऑल्सो बिकेम वेरी करप्टेड एंड उन्होंने क्या किया, पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय कर दिया. द लास्ट मौर्यन रूलर वॉज बृहद्रथ, who was killed by the commander in chief of his army. और जो लास्ट मौर्यन एम्पायर का किंग था बृहद्रथ, वो जो अपने कमांडर इन चीफ के थ्रू ही मारा गया. एंड व्हाट वाज हिज नेम? पुष्यमित्र संगा in 185 BCE. This brought an end to the rule of Mauryan Empire. और ये जो है that was the last chapter. एक तरह से Mauryan Empire यहाँ पे फिनिश हो गया. So I think the chapter is quite clear to all of you. Okay, bye bye students.